So in the last class, what we talked about the structure of the nephron. और हम लोगों ने क्या कहा था भाई नेफ्रॉन के हमारे पास 5 parts होते हैं. So we have the Bowman's capsule. We have these टेढ़ी-मेढ़ी convoluted tubules called as the proximal and the distal convoluted tubules. The one that's near, that's in a close proximity, is going to be the proximal convoluted tubule. The one that's going to be at a distance from the let's say the glomerulus, or sorry, not the glomerulus, the Bowman's capsule, is going to be a distal convoluted tubule. इन पीसीटी और डीसीटी दोनों के बीच में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास एक लूप ऑफ हेनले आ जाता है. देन the last part of the nephron is the collecting duct out of which urine goes out. ठीक है, वालेकुम अस्सलाम. Now, so in the last class we talked about ultrafiltration, right? हम लोगों ने क्या कहा था? Let's write ultrafiltration down today so that we can move on with selective reabsorption and get done with the kidneys today. तो let's say if we were to write about ultrafiltration, तो हम लोग क्या कहेंगे? Now, so हम लोगों ने कहा कि भाई since the diameter of the afferent arteriole is larger than the efferent arteriole, more blood is able to get in than the blood that gets out. So what happens because of that? So it collects within the wart, the glomerulus, where the components of blood leak out. The components of blood leak out and pass through the consi membrane that acts as a sieve, the basement membrane. The basement membrane, and enter where? Into the lumen of Bowman's capsule. Right? As what? As glomerular filtrate. राइट तो देखो इसको अगर हम लोग एक बार और देखें तो हम लोगों ने कहा कि भाई सिंस द डायमीटर ऑफ द afferent arteriole is larger than that of the efferent arteriole, more blood is able to go in, so and less blood is able to go out. So most of it is collected at a high, or inside the glomerulus, and this causes a pressure buildup, or difference because of the different diameter, a pressure buildup, a hydrostatic pressure buildup occurs that causes the components of the blood to leak out from the glomerulus into the Bowman's capsule. But in doing so, ये किससे pass करते हैं? They pass through the Bowman's capsule, right? Now, since they're passing through the Bowman's capsule, passing through the basement membrane हमारे पास gets made of proteins and it acts like a sieve. It's a sieve-like membrane. तो वो वहाँ हमारे पास filtration हो जाती है. So whatever the fluid that is collected in the let's say in the Bowman's capsule is what we call as the glomerular filtrate, because again it's being filtered, so it's a filtrate. It's coming from the glomerulus, so it's a glomerular filtrate. ठीक है. अब होता हमारे पास क्या? This is something that we discussed in the last class as well. There are many things in the blood which are needed by the body but are passing into the glomerular filtrate. Please याद ये रखिएगा, this glomerular filtrate ultimately will convert into urine, right? I don't want everything that's in the glomerular filtrate to go into the urine, so a lot of it is reabsorbed. अब हमारे पास
if somebody would ask you कि भाई what's the difference between the glomerular filtrate and the blood, तो तुम लोग बता दोगे it's exactly the same except the glomerular filtrate does not contain the blood cells or the plasma proteins. ठीक है, वही टिश्यू फ्लूइड वाली चीज आ जाएगी हमारे पास। होता हमारे पास क्या है, the glomerular filtrate also contains glucose. Now your body does not want to lose glucose at all, right? वो कहता है भाई एक्सेस ग्लूकोज होगा ना, मैं उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं उसको लिपिड्स में स्टोर कर दूंगा, लेकिन ग्लूकोज को बाहर जाने नहीं दूंगा, right? So 100% of this glucose needs to be reabsorbed. Along with glucose, all the amino acids that we have, they're the useful amino acids. If they were not the useful amino acids, तो liver उनको किस में convert कर देता, यूरिया में convert कर देता, वो भी absorb हो जाते हैं। Few salts and about 60% of water is reabsorbed. और ये जो हमारे पास सारी की सारी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ना, ये रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास किधर हो रही है, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल के अंदर। अब होता क्या है कि सिंस इनसाइड द प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल not everything is being reabsorbed, only a few things, for example, not a few things, खैर everything or most of the things except for the urea is being reabsorbed, right? लेकिन सब नहीं हो रहा, the PCT is selecting what to reabsorb and what not to reabsorb. So for that reason, the process that occurs in the PCT, in the proximal convoluted tubule, is called as selective reabsorption. ठीक है। अच्छा, अब देखो अब होता क्या है। अब लेट मी आस्क यू गाइस टू थिंग्स। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं ना, और कहाँ से हो रहे हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। सो इफ समवन स्टिल हैज योर ग्लूकोज इन their urine or amino acids in their urine, that means that the problem lies where, in the PCT. But if the person has blood in urine, मतलब उसके अंदर blood red blood cells आ रहे हैं यूरिन के अंदर जो कि नहीं आते, what was preventing the blood cells and the plasma proteins from going into the urine? The basement membrane. तो इसका मतलब क्या हुआ कि if there is blood in urine or if there are proteins in urine, तो या तो किडनी के अंदर कोई इंजरी हुई है, या फिर ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, समथिंग्स रॉन्ग विद दैट। ठीक है, इसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कहते हैं। सो खैर, यू विल स्टडी दिस इंशाल्लाह व्हेन यू गो टू योर मेड स्कूल। मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, समथिंग और दी अदर, सम इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी। नाउ अब अगर हम लोग बात करें PCT के बारे में, so let's talk about PCT, proximal convoluted tubule, and let's see how this selective reabsorption works so that we can be done with the kidneys. ये कौन सा वाला प्रोसेस कैरी आउट करवा रही है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। नाउ अब देखो होता क्या है, अब अगर हम लोग क्या करें, लेट्स से दिस स्ट्रक्चर राइट हियर इज द PCT। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हमने ऊपर एक पिक्चर में देखा था कि भाई ऑल ऑफ द नेफ्रॉन इज सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स लाइक दिस, राइट? अब आई कैन सब, मैं इसको सराउंड करूंगा तो समझ में नहीं आएगा। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ड्रॉइंग अ ब्लड वेसल राइट नेक्स्ट टू इट। हमने इसके बराबर के अंदर एक ब्लड कैपिलरी भी बना दी, राइट? सो हियर वी हैव अ ब्लड कैपिलरी। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास पीसीटी में क्या क्या चीज़ है, I have water right here. We have glucose. We have amino acids. We have salts such as sodium ions, potassium ions, calcium ions, right? उसके अलावा हमारे पास और क्या है इसके अंदर, यूरिया है। अब what happens is this glucose and amino acids
are absorbed from the PCT into the blood, or kitna percent of them? 100% of them, all of them, by the process of active transport from a region of lower concentration towards a region of higher concentration, right? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे पास जो सेल्स होंगे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहे होंगे ग्लूकोज का और अमीनो एसिड्स का फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूलेट ट्यूब्यूल, उनके पास कौन सा वाला ऑर्गेनल्स बहुत ज़्यादा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, टू प्रोवाइड देम विद एनर्जी। ठीक है, वेरी गुड मैम। यस यस आरफा, ये रहा बेटा पीसीटी, बोमेंस कैप्सूल के नीचे। ठीक है, अच्छा जी। अब along with this, not all, but a few salts are also reabsorbed। जितनी जरूरत है उतना reabsorb करेंगे, नहीं है, let's get them out through the urine। ठीक है, अब मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ, are glucose, amino acids, these salts, are they soluble in water or not? हम्म, क्या ये वाटर में soluble है या नहीं है? They are, right? So they are soluble in water, and hence we are going to consider them as what? We are going to consider them as solutes. Since glucose, amino acid, salts, along with urea as well, ये क्योंकि वाटर में soluble है, we are going to consider them as solutes। अब मुझे एक बात ये बताओ, ये जो हमारे पास जितने भी solutes हैं, are they going into the PCT or are they going out of the PCT? ये जितने भी सॉल्यूट्स हैं इन ड्यूरिंग सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये पीसीटी के बाहर जा रहे हैं, पीसीटी के अंदर आ रहे हैं? आर दे गोइंग आउट ऑफ द पीसीटी और आर दे गोइंग इनटू द पीसीटी? दे गोइंग आउट ऑफ द पीसीटी, वेरी गुड, राइट? सो कैन आई से दैट द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल इज लूजिंग द सॉल्यूट्स? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल के अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है। ठीक है, जब भी हमारे पास सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम हो जाएगी कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड मिनाइल, तो हमारे पास जो वाटर पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड में उल्टा हो रहा है, ब्लड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल शुद्ध नहीं है, सॉल्यूट्स बढ़ रहे हैं, राइट? तो ब्लड के अंदर वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ब्लड के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो तो कम हो गया। सो व्हाट हैपेंस, these water molecules from the PCT move into the blood capillaries from the region of higher water potential towards the region of lower water potential, crossing the partially permeable membranes of the cells by the process of osmosis। वेरी गुड तमूर, वेरी गुड मुफसाम। ठीक है, अच्छा, कितना वाटर रीअब्सॉर्ब होता है? 60%। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा कि हमारे पास जो पीसीटी है ना, उसके अंदर हमारे पास पर मिनट कितना वाटर आ रहा है, कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ रहा है? आ रहा हूँ, बता रहा हूँ तैमूर। फिर मुझे बताओ यूरिन लिक्विड कैसे होगा अगर बाकी का 40% भी चला गया तो? जाएगा इतने वो 40% तो खैर सारा का सारा रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। I need some medium to dissolve the urea in, right? So that it could get out of the urethra as a liquid. Make sense? If anything solid is going to pass through the urethra, the linings of the urethra are very delicate, so it's going to cause a lot of pain. So I need something to dissolve the urea into, and that's going to be what? That's going to be water। तैमूर बच्चा बात समझ में आई? अब एक चीज देखो, बाकी का वाटर भी रीअब्सॉर्ब होगा बट नॉट एग्जैक्टली 40%। होता हमारे पास क्या है, अगेन यू नॉट सपोज टू नो दिस, out of the 2.2 million nephrons that you have in both of the kidneys, हमारे पास देखो अल्फा, इसके सेल्स होते हैं, यहाँ हमारे पास सेल्स लगे हुए होते हैं ऑन बोथ द साइड्स, और वो क्या कर रहे होते हैं, वो लूमेन से ग्लूकोस अमीनो एसिड अब्सॉर्ब करके ब्लड वेसल्स के अंदर भेज रहे होते हैं बेटा। डू वी गेट दिस?
कैपिलरीज के अंदर जा रहे हैं एंड द सेल्स आर हेल्पिंग, मतलब वॉट एवर द सेल्स आर दैट आर गोइंग टू बी प्रेजेंट राइट हियर, they're going to absorb them and then move them into the capillaries. हाँ, so you can say the capillaries absorb एक तरीके से. खैर, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, पर मिनट कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है? हाफ अ ग्लास, अबाउट 125 ml. आउट ऑफ दैट 125 ml हमारे पास 60% तो रीअब्जॉर्ब हो गया फ्लूइड, उसकी 60% द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज रीअब्जॉर्ब बाय द पीसीटी. तकरीबन 50 सीएम क्यूब बचता है. उस 50 सीएम क्यूब में से 49 सीएम क्यूब तकरीबन कौन रीअब्जॉर्ब कर लेता है? लूप ऑफ हेनले. इसका काम ही क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ताकि पर मिनट 1 मिनट के अंदर ये हो रहा है. 1 मिनट के अंदर कितना यूरिन बने? 1 सेंटीमीटर क्यूब. अगर पूरा का पूरा 125 सीएम क्यूब बन रहा होता ना, तो इमेजिन पर मिनट आधा ग्लास यूरिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. वी वुड हैव नेवर लेफ्ट द बाथरूम, राइट? और हमें बार बार पानी पीना पड़ता. बार बार पानी पीना क्यों पड़ता? क्योंकि वी आर लूजिंग सो मच वाटर. मतलब तुम 1 गिलास पानी पी रहे हो, उसमें ज़्यादा गिलास यूरिन के अंदर जा रहा है. फायदा. ठीक है. सो कितना यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास? 1 सेंटीमीटर क्यूब. और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना आया था? 125 cm क्यूब. On an average 124 cm क्यूब इज रीअब्सॉर्ब्ड. लेकिन उसमें से भी 60% कौन रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं? पीसीटी. जो बचा कुछ वाटर रीअब्सॉर्ब करना है ना, वो कौन करेगा? लूप ऑफ हेनले. तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि भाई विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एब्जॉर्ब्स द मोस्ट वाटर, तो क्या बताओगे तुम लोग? हाँ भाई, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एब्जॉर्ब्स मोस्ट वाटर? 60% फ्लूइड कहाँ रीअब्जॉर्ब हो रहा है? नहीं शाम, पीसीटी. पीसीटी ना. मुझे एक बात ये बताओ, 60% वाटर मैं पीसीटी से रीअब्जॉर्ब कर रहा हूँ, कितना बच गया? तो दैट्स वन वेरी कॉमन मिस्टेक दैट वी डू. देखो, वॉट एवर द फ्लूइड दैट वी हैव, उसमें से 60% वाटर किसने रीअब्जॉर्ब करा मेरे बच्चों? सॉरी, पीसीटी ने करा ना. 60% वाटर किधर रीअब्जॉर्ब हो रहा है? पीसीटी के अंदर हो रहा है ना. लूपोफेन भी वाटर रीअब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ज्यादा वाटर किधर रीअब्जॉर्ब हुआ? हाँ भाई, पीसीटी के अंदर. वेरी गुड. ठीक है. तो डोंट डोंट कंफ्यूज दिस. डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस. लूप ऑफ हेनले का काम स्पेसिफिकली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ही है, लेकिन वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होने से पहले 60% वाटर पहले से रीअब्जॉर्ब हो चुका था. तो मोर देन 50%, राइट? मेक सेंस? यहाँ तक कोई मसला? So with this we are done with the kidneys, so we're going to start off with hormones in the next lecture.